तो വെട്ടപ്പെട്ട വൃക്ഷം എന്തോ ആയി തീർന്നു. काट के फेंका हुआ वृक्ष को क्या हो गया, മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. डबल रीति से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है योब आने वाला दिन में, क्योंकि उनका प्रत्याशा बहुत कड़क था. हालेलुया. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എത്ര കടക്കാണ്, എത്ര ഉറപ്പുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് നാവിട്ടടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുന്ന വ്യക്തിയല്ല. കർത്താവ് പറയും, നിങ്ങളെന്നെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളെന്നെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം അറിയുന്നവരാണ്. तुम मुझे खाली जीभ से मुझे जानते हैं, मगर मुझे हृदय से जानने वाला व्यक्ति होना मांगते करके परमेश्वर बोल रहे. നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അറിയുന്നവരാണോ നാവ് കൊണ്ട് അറിയുന്നവരാണോ? ഹല്ലേലൂയ. हम खाली प्रार्थना करने का समय बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना करेगा, मगर हृदय में कुछ नहीं, हृदय में प्रत्याशा नहीं, हृदय में विश्वास नहीं, हृदय में परमेश्वर चाहते वैसा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति में भी परमेश्वर चाहते वैसा कुछ नहीं. खाली प्रार्थना में बहुत कुछ प्रार्थना करेगा तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा. रोमियो का लेखन में देखो 4 का 18 वचन पढ़ेंगे. जल्दी जल्दी पढ़िए. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. നിന്റെ സന്തതി പൂർണ്ണമാകും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ബഹുജാതികൾക്കും പിതാവാകും എന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് വിശ്വസിച്ചു. അവൻ ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളവനാകിയാൽ തന്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയപ്പോഴും സാറായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. उधर से हमें मालूम पड़ता है अब्राहम का प्रत्याशा कितना बड़ा था करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ അബ്രഹാം പറയും, അബ്രഹാമിനോട് 100 വയസ്സായപ്പോൾ എല്ലാവരും 99 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ ചത്തുപോയതാ, നീ നിർജീവമാ. ഹല്ലേലൂയ. തോ നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ദൈവം മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ദുർസ്വപ്നമാണെന്ന് മനുഷ്യർ പറയും. ഹല്ലേലൂയ. ദുർസ്വപ്നമാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം എത്ര മോശമായിരുന്നാലും നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. हमारा साहचर्य कितना भी गिरा हुआ होने दो, नहीं होएगा करके हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया तो भी वो नहीं होने वाला चीज को होने वाला बनाने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. जो नहीं है उसको जो है ऐसा बुलाकर निर्माण करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. इसके लिए हमारा प्रत्याशा परमेश्वर में आई क्या करके आज हमारा चिंता रखो. यदि हम अब्राहम के तरह विश्वास रखा, प्रत्याशा रखेगा तो जरूर हम आशीष पाएंगे. നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ മക്കളെ ഉണ്ടാകുമെന്നത് പേക്കിനാവല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യർ പറയും ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന്.
എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ असंभव को संभव करने वाला एक परमेश्वर हमारा है। अब्राहम का परमेश्वर असंभव को संभव किया हुआ परमेश्वर है। हमारा जीवन में भी हम अब्राहम के तरह विश्वास करेगा तो हमारा जीवन को भी असंभव को संभव करने के लिए हमारा परमेश्वर उतर कर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലല്ല, നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മാത്രമേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കണക്കിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും കണക്കിനെ ഉണ്ടാക്കിയ കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ദൈവത്തിൻ്റേത് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. हमारे बारे में परमेश्वर कैलकुलेट कर कर रखा हुआ चीज़ कभी गलत नहीं होता है। हम कैलकुलेट कर रहे तो वो गलत हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य हमारे बारे में कैलकुलेट करेगा तो गलत हो सकता है, मगर परमेश्वर हमारे बारे में कैलकुलेट कर कर रखा है, वो कभी गलत नहीं होएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। स्तोत्रम, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। उत्पत्ति का 12वें अध्याय में सब कुछ छोड़कर निकलने वाला अब्राहम को हम देखा है, तो बहुत कुछ तकलीफ उठाया, बहुत कुछ तकलीफ उठाकर सबको छोड़कर निकला परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर का वचन के पीछे प्रत्याशा रखकर निकल के आया। हम कितना परमेश्वर में प्रत्याशा रखते हैं, हम कितना परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, प्रत्याशा रखते हैं। ये बोला हुआ वचन संभव होएगा करके हमें विश्वास है क्या? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा विश्वास बढ़ने के लिए हम चिंता रखकर आगे बढ़ना मांगते हैं। पहले पत्रोस का 3 अध्याय का 5वां वचन देखो। पहले पत्रोस 3 अध्याय का सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। 5 का 3 है ना? 3 का 5। 3 का 5। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार की भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। देखो उधर हमें मालूम पड़ता है सिर्फ अब्राहम नहीं विश्वास किया, सारा भी विश्वास किया करके उधर लिखा है। अब्राहम से बहु जाति का पिता बन जाएगा करके आशा का विरोध कर कर आशा से विश्वास किया करके लिखा है अब्राहम के बारे में। मगर सारा के बारे में भी उधर लिखा है, सारा भी जैसा वचन बोलते वैसा विश्वास किया। तो दोनों विश्वास में कड़क था करके उधर से मालूम पड़ता है, दोनों विश्वास में एकदम कड़क बन गया। इसके लिए सारा को बहुत भीषणी भी आया करके हमें उधर से मालूम पड़ता है। एक बार सारा को फरवो सारा को लेकर जाकर डराया। और दूसरा एक व्यक्ति है 20वां अध्याय हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम पड़ता है अबीमेलेक सारा को लेकर गया और उसको डराया करके लिखा है।
मगर पर सारा के ऊपर परमेश्वर का वादा था, इसके लिए वो डरा नहीं है। परमेश्वर में प्रत्याशा रखकर परमेश्वर में किसी का डरावना को डरते हुए वो गिरा नहीं है। तो किधर हमें बहुत लोग डराते हैं, बहुत लोग हमें गलत बुरा बोलता होगा, हमें नाश करने के लिए चिंता रखता होगा, मगर वो सभी समय हमारा प्रत्याशा परमेश्वर में रहना मांगते हैं। നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിൽ വെച്ചാൽ ഭീഷണികളെ മറികടക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളെ മറികടക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശാപങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് കൃപ ലഭിക്കും। हमारा विरुद्ध लोग कितना भी भला बुरा कहे, डराओ, परमेश्वर में बचाने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हमारा भरोसा कितना है करके हम चिंता कर कर देखने का। उधर हमें मालूम पड़ता है डरावना, रोग, दुख सब कुछ आएगा तो भी ये सभी प्रॉब्लम हमें दार वाला बनने के लिए സംഭവം बनाते हैं। तो हम एकदम നമ്മളെ മൂർച്ചയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ, നമ്മളെ ഒരു നല്ല ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഈ ഭീഷണി, രോഗം, ദുഃഖമൊക്കെയും ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നത്। तो अब्राहम को भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, सारा को भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। परमेश्वर यूज किया हुआ हर एक व्यक्ति को बहुत तरीके का तकलीफ उठाना पड़ा, क्योंकि उसको तेज बनाने के लिए परमेश्वर ये परीक्षा का अंदर से घुसने के लिए देते हैं, वो कर जाने के लिए देते हैं। ഹല്ലേലൂയ। അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീരണം, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുവാനിടയാകരുത് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്। പ്രത്യാശ നമ്മുടേത് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരും, നമ്മൾ അത്രയും ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായിത്തീരും എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്। ഹല്ലേലൂയ। परमेश्वर के सन्निधि में हम पूरी तरह से समर्पण करेंगे। पवित्र स्त्री लोग, बहुत लोग प्रत्याशा में अपने आप को तैयार किया करके हमें उधर से मालूम पड़ता है। प्रेरितों का काम 27 का 21 में लिखा है, പൗലോസിന്റെ പ്രത്യാശ കാണുവാൻ കഴിയും। പൗലോസിൽ കൂടെ ദൈവം അനേകർക്ക് സുവിശേഷം കൊടുത്തു, ദൂത് കൊടുത്തു, പക്ഷേ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയെ മറികടന്നവർക്കൊന്നും അത്ഭുതം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല। तो ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അനുസരിച്ച് जरा पढ़िए एक्ट्स का 27 का 21। पौलुस का प्रत्याशा कैसा है, पौलुस का होप कैसा है करके देखो। जब वे बहुत दिन तक भूखे रहे चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए या कि तुम मेरी बात मानकर क्रेतो से ना जहाज खोल दो और ना यह विपत्ति आती और ना वह हानि उड़ाते। हालेलुया। उधर बोल रहा है बहुत खाना नहीं है, ऐसा अवस्था था। तकलीफ उठने के बाद पौलुस बोल रहा है, तुम लोग क्रेता से ये जहाज मत निकालो, बहुत तकलीफ होने वाला है, समुद्र में तूफान आने वाला है, तकलीफ आने वाला है करके पौलुस बोला तो लोगों ने सुना नहीं। अपना मर्जी से परमेश्वर जो दूध हमें देते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाना मांगते हैं। तो
तो ये लोग पौलुस का वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं हो गया। बहुत लोग ऐसा है, वो जो सुनने वाला वचन को इधर से सुनकर इधर से चले निकाल देते हैं और अपना ही मर्जी से पहले कैसा जिया वैसा ही जीते रहते हैं। तो वचन खाली सुनते हैं और वचन के अनुसार अपना जीवन को तैयार नहीं करते हैं, पहले के तरह ही जीते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, तकलीफ में गिर जाता है। तो पौलुस ने उन लोगों को वचन दिया, तुम जाओ मत, समुद्र में प्रश्न आने वाला है। कितना लोग था उसमें, जहाज में लिखा है 275 लोग, ऐसा है मेरे को सुना है। हाँ, उसका 37 में 37 में लिखा है 276 लोग था उस जहाज में। उतना लोगों का नाश के लिए वो प्रभु का वचन नहीं सुना। मगर प्रभु दयालु और कृपालु है, इसके वजह से कोई भी व्यक्ति का प्राण को नाश होने के लिए नहीं दिया पौलुस का वजह से। तो हम कितना विश्वास रखकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीते हैं क्या? परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएगा तो चमत्कार दिखाई पड़ेगा, चमत्कार पा सकता है। और ये चमत्कार पाकर हमें आगे बढ़ने के लिए हम तैयार है क्या करके परमेश्वर आज हमें पूछ रहा है। हम चमत्कार 27 का 10 जरा पढ़िए। 27 का 10। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरना हमारे प्राणों की भी होने वाली है। देखो, पौलुस ने वो बोल दिया था, अपने प्राण को भी तकलीफ होने वाला है करके बोला था, मगर लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने वो उठाया नहीं और स्वीकारा नहीं है करके उधर से मर। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दिया हुआ वचन को अनसुनी करेगा तो जरूर हमारा जीवन में नाश हो सकता है। वचन को स्वीकार कर जो भी व्यक्ति बोले वचन, वो वचन को स्वीकार करने के लिए हम तैयार होना मांगते हैं। तो एक्ट्स का 27 का 23 देखो। എന്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പൗലോസേ, ഭയപ്പെടരുത്, നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു, നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു। उधर लिखा है परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। तो पौलुस उस जहाज में था, इसका वजह से 276 लोग बच गया। क्योंकि पौलुस को किधर खड़ा करने का है, यरूशलेम में खड़ा किया, वैसा ही कैसर के सामने परमेश्वर को पौलुस को खड़ा करने का है सुसमाचार सुनाने के लिए। इसके लिए पौलुस प्रत्याशा में दृढ़ था। इसके लिए स्वर्गदूत आकर उनको बताया इसमें कोई भी व्यक्ति का प्राण को नाश नहीं होएगा, मगर तुम्हारा सभी सामान का नुकसान हो जाएगा, उधर जहाज का भी नुकसान हो जाएगा। मगर उधर नीचे नीचे हम पढ़ेगा तो अलेक्जेंड्रिया से एक जहाज आकर उन लोगों को बचाया करके उधर हमें मालूम पड़ता है। हालेलुया। देखो, कपल नाश हो गया, जहाज नाश हो गया, पूरा डूब गया। तो ये लोग ठंडा पानी में रहने का समय है, ठंडा पानी से बचाने के लिए अलेक्जेंड्रिया का एक जगह जाकर इन डूबने वाला लोगों को बचाया करके उधर से मालूम पड़ता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रत्याशा रखकर जिएगा तो जरूर हमें बचाने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई व्यक्ति को प्रभु खोल कर देगा, वो लेकर आएगा। हालेलुया। इसके लिए हम पूरी तरह से परमेश्वर में प्रत्याशा रखकर हमारा आशा का विरुद्ध हमें आशा रखना मांगते हैं। जैसा अब्राहम ने प्रत्याशा यीशु में रखा, जैसा योब ने काटा हुआ वृक्ष के समान हो गया तो भी जीव जल का गंध के लिए, जीव जल का स्पर्श के लिए आशा रख कर बैठा, वैसा ही हमें भी हमारे अवस्था को परमेश्वर के सामने समर्पण कर कर हमें आशा रखकर हम प्रत्याशा में दृढ़ होकर हम जी रहे तो जरूर हमारा जीवन को बचाने वाला एक परमेश्वर हमारे सामने उतर कर आएगा। स्तोत्र, धन्यवाद। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन।